discuss that the Gaussian integers. So this is very important result, Gaussian integer. So a plus iota b, this is such that a b belongs to z. So this is a set of Gaussian integer. Now my aim is to find the unit of this Gaussian integer. Unit means that element is invertible. So to find the invertible elements, so I take some element a plus iota b. So this element is a non-zero. So remember that this element is non-zero. It belongs to Gaussian integer zi. So if this is a unit, if a plus number 1, it is a non-zero element. So let this be a non-zero element. So this is a first condition of a non-zero element. So if it is a unit, then it is a invertible. So remember that in that case it is a invertible. So if it is a invertible, then what is its inverse? So its inverse is a plus iota b raised to power minus 1. So that is equal to 1 plus a plus iota b if we rationalize. So this value is a minus iota b over a minus iota b. So this value is equal to a over a square plus b square minus iota b over a square plus b square. So inverse is of this kind. Now if inverse is of this kind, so it means this should be integer, because if it is a invertible, then its inverse belongs to zi. So this should be belongs to zi. If this belongs to zi, then it should be integer. This should be integer, number 1, and again this should be integer. So this will be integer if this value a square plus b square is equal to 1 or minus 1. So these are integers if and only if this value is equal to plus 1 or minus 1. So this is possible if and only if a square plus b square is equal to plus minus 1, but minus is not possible because both the numbers are positive. So it means this is possible only a square plus b square is equal to 1. Why? Minus 1 is not possible because it is positive, so sum cannot be negative. If this value is equal to plus 1, then it means it has two possibilities. Either a is equal to plus minus 1 and b 0, this is one solution. Second, a 0 and b is equal to plus minus 1. Clear? So these are the two ways to find the solution of this equation. Then what it means? It means a plus iota b. This is by using first condition, it will be plus minus 1, number 1. If I am using this condition, then it will be plus minus iota. So there are 4 units of this Gaussian integer. So the 4 units of Gaussian integers are plus minus 1, plus minus iota. So these are units of Gaussian integers, set of Gaussian integers. So in this way we can find the unit of any integral domain, any numbers. Now after going to that, so we will discuss a important result. So if the statement is
if D is integral domain, suppose this D which is equal to integral domain. So this is a integral domain. So in the notes, this is a example number 16. In the notes, example number 16. Then prove that, to prove, so that is a given part, D is integral domain. Then prove that characteristic of D is either 0 or prime number. So there are only two possibilities, either characteristic of D is 0 or a prime number. If characteristic of D is 0, then we have nothing to prove. If characteristic of D equal to 0, so we have nothing to prove. So suppose characteristic of D is a some non-zero finite number. Some non-zero finite number. Suppose it is a n. Now n has two possibilities. Either n is composite or prime number. So we want to show that n is a prime number. So अगर ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. Now first, what is the definition of characteristic of n? It implies, what is characteristic? n is least positive integer. तो मैं पहला डेफिनेशन ਨੂੰ लिख लेना. Integer such that n a is equal to 0 for every a belongs to d. ठीक है जी. तो d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं कोई भी एलिमेंट लेना और n ਦੇ ਨਾਲ अगर मल्टीप्लाई करदा ਤਾਂ ਉਹਦੀ वैल्यू 0 हो जाएगी. ਹੁਣ मैं प्रूव करना चाहना n ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्राइम नंबर हैगा. मान लो suppose n जो है it is not prime number, मतलब कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर. मान लो ਅਸੀਂ कंट्राडिक्शन लगानी है. सो ਅਸੀਂ कंट्राडिक्शन लगाने ਲਈ मान लिया कि n ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्राइम नंबर नहीं है. जे नहीं है तो n किदां दा होएगा? n कंपोजिट नंबर होएगा. सो दो नंबरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ये नंबर किदां दे होणगे? P और Q n तो छोटे होणगे और 1 तो वड्डे होणगे, यानी 1 तो वड्डा और n तो छोटा. सो दिस वैल्यूज आ गई. हुण असीं इस डेफिनेशन नूं देखिए. सो वट इज़ दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन का मतलब अगर D दे विचों असीं कोई भी एलीमेंट लईए और उस एलीमेंट नूं अगर n मल्टीप्लाई कर रहा तो ਉਹਦੀ वैल्यू 0 हो जाएगी. राइट. ਹੁਣ A D ਨੂੰ बिलोंग कर रहा. D की है? रिंग. रिंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो इट मीन्स सिंस A square belongs to D. Why? Because it is closed under multiplication. अगर A इंटू A इन बिलोंग कर गया, A स्केयर बिलोंग कर गया, अगर कर गया तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग n इंटू A स्केयर किहदे बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा. सो दैट इज बाय इक्वेशन नंबर 1. साडे कोल n की वैल्यूज क्या है? n की वैल्यू है P इंटू Q और A की वैल्यू क्या है? A इंटू A स्केयर. सो इनू असीं लिख सकते हैं 0 के बराबर. और दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज PA इंटू QA इज इक्वल टू 0. राइट. हुण PA किहदा एलीमेंट आ? D का. D की है इंटैग्रल डोमेन
और इंटैगरल डोमेन की जिहड़ी कंडीशन क्या होंदी है, विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। सो जदों असीं प्रॉपर जीरो डिवाइजर नूं अप्लाई करांगे तो पी ए जीरो हो जाएगा और क्यू ए दी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन बाय वन। क्यों? क्योंकि इट डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ एन। सो एन की है, एन सब तो छोटा नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिहड़ी ए नूं गुणा करके जीरो ते लै जांदा। असी की लभ लिया, असी पी लभ लिया ते क्यू लभ लिया जिहड़ा कि एन तो छोटा है, जबकि असी कह रहे एन ही सब तो छोटा इंटीजर है। तो असी की फाइंड आउट कर लिया कि उस तो भी छोटा एक नंबर है जिहड़ा कि मल्टीप्लाई करके जीरो ते ले जा रहा। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस इट मीनस विच डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ एन। अगर वो एन की मिनिमैलिटी नूं डिस्टर्ब कर रहा, सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो विच इज़ कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन है तो साडी सपोजिशन रॉन्ग होगी। तो असी की मन्निया सी, असी मन्निया सी जिहड़ा साडे कोल एन नंबर है वो कंपोजिट है, बट जे रॉन्ग हो गया तो एन नंबर साडे कोल किदां दा होएगा, प्राइम नंबर होएगा। सो रिमेंबर दैट करैक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंटैग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम नंबर। ये साडे कोल इहदी नैक्सट रिजल्ट एग्जाम्पल असी कह सकते। उस तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करिए। हुण सानू की दिता, डी दिता, उस ढंग नाल इंटैगरल डोमेन। पहली गल स्टेटमेंट नू बड़े ध्यान नाल समझो, स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन नू। डी सानू इंटैगरल डोमेन दिता एंड नाल क्या दिता, इफ एन ए is equal to 0, n a equal to 0 for some a belongs to d। a किदां दा नंबर है, नॉन जीरो, a belongs to d। हुण इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना, फॉर सम मतलब कोई एक नंबर आ, फॉर ऑल नहीं है, मतलब डी दे एलीमेंट सारे इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करते, सिर्फ एक एलीमेंट इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता। एंड एन जिहड़ा है ये कोई नॉन जीरो इंटीजर है, इट इज़ ए नॉन जीरो इंटीजर। तो असी प्रूव की करना, शो दैट करैक्टरिस्टिक ऑफ डी इज इक्वल टू फाइनाइट। तो करैक्टरिस्टिक उहदा फाइनाइट होएगा। ठीक है जी। सो कन्फ्यूज नहीं होना, करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन तो इनू देख के करैक्टरिस्टिक च की हुंदा, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, एवरी एलीमेंट ऑफ डी, बट here it is a only one single element, that is a single element A। अगर असी रिजल्ट नू सारिਆਂ ਲਈ प्रूव कर दईए तो साडा जिहड़ा करैक्टरिस्टिक फाइनाइट हो जाएगा। तो मैं कोई भी x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d ले लिया। अगर मैं कोई भी x यानी कि कोई भी d च एलीमेंट ले लिया तो सानू पता एन ए इंटू एक्स, अगर मैं लिखदा एन ए की वैल्यू कितनी दी, जीरो, जीरो इंटू एक्स कि बराबर आ गया जीरो के। सो वट इट मीनस एन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। तो इसका मतलब ये होया कि एन ए एक्स जिहड़ा है वो साडे कोल इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा। एन की है, इंटीजर। अगर इंटीजर आ तो कितना दा होएगा, 5 होएगा, 7 होएगा, 10 होएगा।
तो 5 ਨੂੰ मैं एक एक करके एक एक वारी 5 वारी ऐड कर सकदा, यानी 1 ਨੂੰ मैं 5 वारी ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा। तो सिमिलरली n ਨੂੰ अगर 1 ਨੂੰ मैं n वारी ऐड करा, यानी 1 + 1 + 1 + 1, तो साढ़े कोल की हो जाएगा n हो जाएगा। अगर मैं a नू n वारी ऐड करा तो की बन जाएगा na बन जाएगा। सो दिस इंटू x इक्वल टू 0 for every x belongs to D, right? So this na basically can be written in this form, और a साढ़े कोल की है x है, so this value can be written as ax plus ax so on plus ax equal to 0. So this is a sum of this number, so this value can be equal to 0. हुण मैं a नू कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, x plus so on x, and this is equal to 0, right? So असी की कीता, जिहड़ा n दे नाल a जुड़िया सी वो मैं x दे नाल जोड़न लगा। सो मेरे कोल एक एलीमेंट a बन गया, दूजा एलीमेंट nx बन गया, और a आ गया 0 दे दिस बराबर। और काम असी किहदे च कर रहे हैं, इंटैग्रल डोमेन च। तो इंटैग्रल डोमेन च जा तो पहला एलीमेंट 0 होएगा या दूजा एलीमेंट 0 होएगा, क्योंकि पहला एलीमेंट साढ़े कोल किद्दां दा आ, नॉन जीरो आ। जब पहला एलीमेंट नॉन जीरो आ तो सैकेंड एलीमेंट यानी nx किद्दां दा हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू साढ़े कोल D. So it satisfy, so this condition is satisfy for every x belongs to D, then it means characteristic of D is finite. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मैं ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ n क्यों नहीं लिखिया? मैं ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ n इस करके नहीं लिखिया कि ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ n ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ कि जे n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होवे, पर इत्थों तक सानू पता नहीं है कि n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या सिंपल इंटीजर आ। तो यदा मतलब कोई ना कोई तो इंटीजर है जिहड़ा इस कंडीशन नू सैटिस्फाई कर रहा। जे इस कंडीशन नू सैटिस्फाई कर रहा तो यदा मतलब लीस्ट भी होएगा, और वो हो सकता n होवे या ना होवे, पर जो भी है वो फाइनाइट जरूर होएगा। सो इट मीन्स करैक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन in this case is always a finite. Now after that question number 18, so example 18 या question number 18 this is, तो असी हुण कंगुरेंस मॉड्यूलो n दे विच गल करांगे, उहदे यूनिट दी गल करांगे। show that, तो what is this system? show that this element A belongs to Zn, and this is unit. Unit mean it is a invertible. This is a invertible, यानी कि यूनिट है। सो अगर साढ़े कोल ए एलिमेंट है, यूनिट है, तो साढ़े कोल A belongs to Zn. It is a unit if and only if GCD of A and N is equal to 1. Show that A belongs to Zn is a unit if and only if GCD of A and N is equal to 1. So this is very important question. So ਇਹਦਾ solution ਅਸੀਂ देखिए। सब तो पहला मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करन जा रहा। लेट A belongs to Zn, this is B a यूनिट। मान लो ये यूनिट है, ठीक है जी। अगर यूनिट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट दी डेफिनेशन,
सो पहला आप जेड एन नू मैं लिख लेना। जेड एन च किदां दे एलीमेंट होणगे 0 1 2 कित्थे तक n माइनस 1 तक। सो दिस इज़ ए मडूलो n। सो इस टाइप दे होणगे। सो रिमेंबर दैट अगर ए यूनिट है तो यूनिट की डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू जेड एन सच दैट क्या होएगा ए कंगुरेंट मडूलो मल्टीप्लिकेशन बी एन दिस इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 1 राइट। इट मीनस जदों ए बी नू एन नाल डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर एक बचिया एक रह रहा। सो 1 इज रिमाइंडर वैन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। तो यदा मतलब की है कि जिहड़ा एन है ए बी माइनस 1 नू पूरी तरह डिवाइड कर रहा। सो एन डिवाइड ए बी माइनस 1। अगर एन ए बी माइनस 1 नू डिवाइड कर रहा तो नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी मुताबिक ए बी माइनस 1 नू मैं लिख सकता एन इंटू क्यू टाइप। क्यू इज सम इंटीजर्स। सो दिस इज फॉर सम इंटीजर क्यू। So this is AB minus 1 can be written in this form NQ, or this NQ can be written in this way AB first element इन्हों इधर शिफ्ट किया प्लस माइनस क्यू इंटू एन या प्लस एन इंटू माइनस क्यू एंड दिस वैल्यू is equal to 1. Clear? So it is a linear combination of these values equal to 1. So by result of number theory, if linear combination is equal to 1, then it implies GCD of A and N is equal to 1. So which prove our first part. Now converse part. So what is the converse part? Now in the converse part, let an GCD of A and N is equal to 1. So by definition there exists integer xy belongs to z such that ax plus ny which is equal to 1. So remember that ax equal to ny equal to 1. Now after that it implies ax which is equal to minus n into minus y plus 1 this values. Now I write it as equation number 1. Now in that case suppose this n divide, so असी नंबर थ्योरी च पढ़ते हुन्ने आ कि मान लो n नंबर x नू डिवाइड कर रहा, क्यू क्यूशेंट आ गया, आर रिमाइंडर आ गया, तो असी एक्स नू लिखांगे एन क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर जिहड़ा हुंदा डिवाइजर तो छोटा लैस दैन एन और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. सो दिस वैल्यूज. So this x can be written in this way. So if we multiply by a from the left hand side, so what we get ax which is equal to anq plus ar. So अगर असी
ए ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ तो साढ़े कोल ax this is equal to of this kind a n q and this values. Again from this equation this is equal to n into minus y plus 1 this values n into minus y into plus 1. So this can be written as, so just see this part. From this part a into r is equal to this value, n is common, so n multiplied by minus y minus a q. So what is this? It is a integer plus 1. It means this n divide ar and remainder is 1, so 1 is remainder when n divide the product ar. So it implies a this r is equal to 1. So it means this multiplication is equal to 1 where 0 less than equal to r less than n. It means r is a element of Zn because it is less than n and greater than equal to 0. Also it is a inverse of a, so it means there exists r belongs to Zn such that a into r is equal to 1. So it means this a is a unit. Unit mean a is invertible. So in this way we can prove that if Zn a belongs to Zn is unit if and only if GCD of an is equal to 1. So next example, again very important. So this is a example number 10. So ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GNDU 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. show that ZP, this is, now here I am taking ZP which is equal to 0 1 2 so on up to p minus 1. So this will be field modulo p. So this will be field if and only if p is a prime number. This is a field if and only if this p is prime number, right? So this is again very important result. Now so there are two way. First part, so let ZP is a field. So first remember the definition of field. So in the field every non-zero element is unit. In the field ZP is a ring or every non-zero element is a unit invertible. Also it is a commutative. Now so if ZP is a field, so we want to prove that P is a prime number. Suppose this P is not prime number. Suppose by contradiction P is not a prime. If it is not a prime then it is a composite number. So we can write it as the product of two numbers. So this means P can be written as AB where A less than P greater than 1, B less than P greater than 1, these values. So
it implies. So this is value of P and this value is equal to this value. It means this P divide AB. What it means? P divide AB, because P divide P, so P divide AB. It means A multiplication modulo P with B is equal to 0, because 0 is a remainder when AB is divided by P. But this A is non-zero and B is non-zero. A is non-zero, B is non-zero, but their multiplication is 0. So it means it is not an integral domain. So ZP is not a integral domain. Integral domain, so which is a contradiction, because every field is a integral domain. So which is contradiction. So which is contradiction. So which is a contradiction. If which is a contradiction, then our supposition is wrong. So if our supposition is wrong, then it means ZP is a P is a prime number. Now converse part. So it was a first part which proved that this P is a prime number. So P is a prime number. Now converse part, here the given is P is a prime number. So let P is prime number. And ZP, which is a finite. So this is a finite integral domain. So remember that 0, 1, 2, P minus 1, this is a finite element. Also it is a integral domain. So we know that the every finite integral domain is a field. तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ field prove ਕਰਨਾ. तो अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंटैग्रल डोमेन प्रूव कर देंगे, फाइनाइट है, तो अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंटैग्रल डोमेन प्रूव कर देवांगे तो साडे कोल ਇਹ फील्ड बन जाएगी. सो वट इज़ आवर क्लेम? सो मेरा क्लेम है कि जिहड़ा ZP है ये इंटैग्रल डोमेन है. सो कम्यूटेटिव रिंग तो यह हैगा आ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਯਾਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, A ਤਾਂ B. ਸੋ A cross B is equal to 0. It implies. So what it means? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P AB ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਏਗਾ. मतलब P पूरी तरह AB ਨੂੰ डिवाइड करेगा. ਹੁਣ P ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? प्राइम नंबर. तो P A ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा और P B ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा. अगर P A ਨੂੰ पूरी तरह डिवाइड कर रहा तो A किहदे बराबर हो गया? 0 दे. अगर P B ਨੂੰ डिवाइड कर रहा तो B किहदे बराबर हो गया? 0 दे. This product is 0. It implies either A0 और B0. It means ZP साढ़े कोल की बन गई? इंटैग्रल डोमेन बन गई. और फाइनाइट A है और फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन की बन जाती? फील्ड बन जाती. सो एवरी फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन इज़ ए फील्ड. सो विच प्रूव आवर रिजल्ट कि कोई भी अगर असी फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन लईए
वो साडे कोल फील्ड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन important example. So in this case let D is finite, number one, finite non-zero, और थर्ड है integral domain. So what is given? D is finite non-zero integral domain. Then तो असी प्रूव की करना, order of D is some power of prime number. So what is P? P is prime number. Or what is N? N is a positive integer. N is a positive integer. So अगर साडे कोल D finite non-zero integral domain है तो साडे कोल ओदा ऑर्डर P दी सम पावर वर्गा होएगा। सो इस चीज़ नूं याद रखना। नाउ सॉल्यूशन, सो प्रूव what is D? D is non-zero, नंबर 2 finite, तो इंटैग्रल डोमेन है, इस करके रिंग है। क्योंकि D नॉन ज़ीरो है, पहली गल समझो, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलीमेंट जरूर होएगा। उस एलीमेंट का नाम रख लिया मैं ए। हुण क्योंकि D रिंग है, सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन एज वैल एज इन एडिशन। सो ए अगर ये ए प्लस ए भी इनू बिलोंग करेगा, यानी ए तो इनू बिलोंग करता ही आ। ए प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। इन्हां दोनों का जोड़ करिए 3a हो गया, फिर 4a हो गया, फिर 5a हो गया। करते जाइए, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ D, these are all element of D। पर D दे एलिमेंट किदां दे? फाइनाइट, तो ये किते ना किते जाके रुकणगे, किते ना किते ये स्टॉप लगेगा। ठीक है, सो उन्होंने असीं देखना। सब तो पहला तो ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए आ। तो पहला असीं प्रूव करांगे कि ऑल दीज एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। नाउ टू प्रूव दैट, अगर सानू पता सिंस D is finite, D is finite, तो एक समय तो बाद एलिमेंट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। मतलब आई ए इज इक्वल टू आई जे, आई ए इज इक्वल टू जे ए फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब आई ए तो जे ए सेम होने शुरू हो जाएंगे फॉर सम आई तो जे बराबर जदों नहीं होंगे। सो इन्हां दोनों इंटीजर च एक इंटीजर बड़ा होएगा। सो असी अजूम कर लें आई बड़ा है, आई इज़ ग्रेटर दैन जे, तो जे भी कर सकते हैं, पर दोनों च एक इंटीजर बड़ा होएगा। सो इट इंप्लाइज आई माइनस जे into a equal to 0, this values, I minus j equal to this values. So it implies k a equal to 0, और k तुसी की ले लिया I minus j ले लिया, क्योंकि डिफरेंट है तो k किदां दा होया? नॉन ज़ीरो। सो k a इक्वल टू हो गया 0 के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब असी कोई पॉजिटिव नंबर लभ लिया ਜਾਂ कोई इंटीजर लभ लिया ਜਿਹੜਾ a ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 0 ਦੇ बराबर आ जाता। तो असी पिछे रिजल्ट किया सी कि जे असी इदां दी कंडीशन नूं सैटिस्फाई कर दईए तो उस इंटैगरल डोमेन दा करैक्टरिस्टिक साडे कोल किदां दा होएगा? फाइनाइट होएगा।
उस करैक्टरिस्टिक उस दा फाइनाइट होएगा। ठीक है जी। और फाइनाइट अगर करैक्टरिस्टिक है किसी भी इंटैग्रल डोमेन का, तो सानू ये भी पता है कि मान लो असी दो पॉसिबिलिटीज़ होणगियां कि जा तो यदा करैक्टरिस्टिक प्राइम नंबर होएगा या यदा करैक्टरिस्टिक जिहड़ा आ वो कंपोजिट नंबर होएगा। तो असी मान लिया लेट करैक्टरिस्टिक ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू पी एंड पी इज़ सम प्राइम नंबर, मान लो। सो लेट करैक्टरिस्टिक ऑफ डी which is equal to finite, so this is p, and suppose it is some prime number, ये prime number है। characteristic of d जेड़ा वो किदां दा होएगा, prime number होएगा। अगर characteristic of d finite है तो असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर characteristic of d दा इंटैग्रल डोमेन दा ਜਾਂ 0 होएगा ਜਾਂ प्राइम नंबर होएगा। असी एक रिजल्ट किया सी किसी भी इंटैग्रल डोमेन का करैक्टरिस्टिक या 0 होएगा या प्राइम नंबर होएगा। सो उस प्राइम नंबर नूं असी पी मान लिया। हुण असी देखिए कि इस तो इलावा कोई होर प्राइम नंबर तो नहीं है जिहड़ा डी का करैक्टरिस्टिक बन जाता। तो मान लो लेट क्यू इज़ एनी प्राइम नंबर, बी प्राइम नंबर, कोई होर प्राइम नंबर असी ले लिया नंबर सच दैट जेड़ा कि ऑर्डर ऑफ डी नू डिवाइड कर रहा। क्यू इज़ सम प्राइम नंबर विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ डी, और सानू पता डी जेड़ा विद प्लस अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो ये ते असी कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या होंदी आ कि असी कोई भी बाय कॉची थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू डी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक है जी। सो कॉची थ्योरम असी अप्लाई करती कि साडे कोल ऑर्डर ऑफ ए जिहड़ा है वो किहदे बराबर आ जाएगा, क्यू दे बराबर आ जाएगा। जे क्यू दे बराबर आ गया इहदा मतलब क्यू इंटू ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपां काम किहदे च कर रहे हैं, एडिटिव अबेलियन ग्रुप दे विच काम कर रहे हैं। सो दिस वैल्यू इज़ सैटिस्फाइड। नाउ करैक्टरिस्टिक ऑफ सानू जिहड़ा करैक्टरिस्टिक दिता है डी दा, ये की दिता है, पी दिता प्राइम नंबर। ਇਹਦਾ मतलब पी एक्स इज़ इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। भी असी कोई भी एलीमेंट लईए वो इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करेगा। तो आपां एक्स की जगह तो ए ले लीए। सो इन पार्टिकुलर पी इंटू ए इक्वल टू 0 आ गया। जे पी इंटू ए इक्वल टू 0 आ गया सो ਇਹਦਾ मतलब पी ऑर्डर ऑफ ए नू डिवाइड करेगा। सो पी जिहड़ा है इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए की है, क्यू, और क्यू की है, प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर अगर पी क्यू नू डिवाइड कर रहा सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली पी इक्वल टू क्यू के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब पी इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ डी, क्योंकि क्यू कर रहा सी पर क्यू किहदे बराबर आ गया, पी दे बराबर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब पी ही इज़ द ओनली प्राइम नंबर सच दैट पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ डी, यानी पी ही ऑर्डर ऑफ डी नू डिवाइड कर सकदा। इट मीनस ऑर्डर ऑफ डी किदां दा होएगा, पी दी पावर एन वर्गा होएगा। सो इहदे तो सानू की पता लग रहा, इस तो ये पता लग रहा कि अगर साडे कोल कोई डी इंटैग्रल डोमेन है
ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 2 ਸਕੁਏਅਰ 4 8 16 ਜਾਂ 3 9 27 है ना। सो इस टाइप का होएगा। अगर इस टाइप का नहीं है तो वो साडे कोल इंटैगरल डोमेन नहीं हो सकता। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल आपां 6 की गल कीती सी, सो 6 इस टाइप का नहीं है। फिर आपां गल कीती सी 12 की, 12 भी इस टाइप का नहीं है। फिर आपां गल कीती सी 10 की, तो 10 भी इस टाइप का नहीं है। तो कोई भी अगर इंटैगरल डोमेन है तो उहदा ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर n वर्गा होएगा। ठीक है। सो हेयर वी गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एनी इंटैगरल फाइनाइट इंटैगरल डोमेन, सो रिमेंबर एनी फाइनाइट फील्ड मस्ट बी प्राइम, एवरी फाइनाइट इंटैगरल डोमेन इज़ ए फील्ड, सानू पता। सो एवरी फाइनाइट इंटैगरल डोमेन, ठीक है जी, वो किदां दी होएगी, वो फील्ड होएगी। कोई भी असी फाइनाइट इंटैगरल डोमेन वो हमेशा साडे कोल फील्ड हुंदी, सानू पता। और इंटैगरल डोमेन फाइनाइट किदां दी होगी, किसी ना किसी p दी पावर n वर्गी। ਇਹਦਾ मतलब एनी फाइनाइट फील्ड मस्ट बी ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। एनी फाइनाइट फील्ड must be, remember this result, must be of prime power order, right? So do these question. After these question we will discuss subring, ideals and quotient rings.